اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورہ المجادلہ یا المجادلہ کی آیت نمبر 5 سے کر رہے ہیں، اور پچھلے درس میں اس سورت کے نام اور اس کی جو ابتدائی 4 آیتیں جن کا ہم ترجمہ اور تشریح کی تھی، اس کے بارے میں جو سبب نزول تھا اور اس کے نتیجے میں جو اسلام نے سوشل ریفارمز انٹروڈیوس کی خاندانی اور ازدواجی زندگی کے متعلق، اس کے بارے میں باتیں ہوئی تھیں۔ تو آج ہم جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہاں پر رخ جو خطاب ہے وہ ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن اور اسلام کی تعلیمات کو چیلنج کرتے ہیں اور ان سے روگردانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور ان کا وبال کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ازلی صفات ہیں کہ وہ بندوں کی حرکات و سکنات سے واقف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ انسانوں کے ساتھ ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے ہر چیز کے اوپر، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے۔ اور جو لوگ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گستاخیاں کرتے تھے، اور وہ سو کال مسلمان تھے یا دوسرے لوگ تھے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے اخلاق کتنے گرے ہوئے تھے، اور اخلاقی تنزل کا وہ شکار تھے، اور ان کی اخلاقی تنزلی اور گھٹیا حرکتوں کو ایکسپوز کیا گیا ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں ہیں جن کا نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صحابہ کرام اور ان کے مخالفین سے تعلق ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سی عبرتیں ہیں۔ بعد کی جو جنریشن ہے، ہمارے جو آج کل کے حالات ہیں، اس کے بارے میں بھی اس کے اندر بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سے اسباق ہیں۔ تو
आयत नंबर 4, आयत नंबर 5 की पर गुफ्तगू करने से पहले मैं अर्ज करूंगा कि आयत नंबर 4 के जो इख्तितामी जुमले हैं उन पर हम गौर करें और फिर आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 को आपस में लिंक करें कि किस तरह उनके दरमियान रब्त है। तो ये देखें, आखिर में फरमाया ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तिलका हुदूदुल्लाहि व लिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। ये 3 जुमले हैं और ये तीनों जुमलों का पहली आयत के साथ भी ताल्लुक है और आने वाली जो आयत है उनके साथ भी रब्त और उसके अंदर एक पैगाम है। अब अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमा रहे हैं मुसलमानों को, और वो मुसलमान जो सहाबा किराम हैं, फिर उनसे ये कहा जा रहा है कि ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह के अहकामात और सोशल रिफॉर्म्स इसलिए हैं ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अब लफ्जी तर्जुमा तो इसका यही होगा कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, लेकिन उलमाए कराम ने लिखा है कि यहाँ ईमान मुराद नहीं है, या मुराद है अल्लाह ने जो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं, जो अहकामात दिए हैं, उन पर अमल करना, यानी ईमान की अमली सूरत पैदा करनी है। लफ्जी तौर पर और कल्बी तौर पर ईमान तो आप ला चुके हैं, लेकिन ईमान लाने के बाद अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं उनको अमली तौर पर दिखाना, ये ईमान की एक शर्त है जो न सिर्फ सहाबा कराम के लिए था बल्कि हमारे लिए भी और हर दौर के मुसलमानों के लिए है। फिर फरमाया वतिल का हुदूदुल्लाह है, ये अल्लाह का जो ये फरमान है कि ये जो बातें अल्लाह ताला ने जो रिफॉर्म फरमाई है जिहार के कानून के अंदर और उसकी जो मतलब रस्म थी और रिवायत थी उसके अंदर जो तब्दीली फरमाई है और उसके कफारे के बारे में जो अहकामात दिए हैं, ये अल्लाह की हुदूद है। अल्लाह की हुदूद का मतलब है कि ये बाउंड्रीज हैं, लिमिट्स हैं, इनको आपने क्रॉस नहीं करना है, उनके अंदर आपने रहना है। तो ये गोया कि वार्निंग दी जा रही है, तंबीह की जा रही है कि आपने इनको लाइटली नहीं लेना, बल्कि आपने सीरियसली इनके ऊपर अमल करना है और उन चीजों से बचना है जिनसे बचने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। और फिर क्या फरमाया, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, कि जो लोग काफिर हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब यहाँ पर आप गौर करें कि ये अहकामात दिए जा रहे हैं किनको, मुसलमानों को खिताब दिया जा रहा है, किनको, मुसलमानों को। यहाँ पर लफ्ज काफिरीन फरमाने का क्या मकसद है? यहाँ काफिरीन से मुराद वो शख्स नहीं है जो एतिकादी तौर पर काफिर है, यहाँ से मुराद मुसलमान है, और जिनसे ये कहा जा रहा है कि मुसलमान होती हुए वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के खिलाफ अमल करते हैं। तो काफिर का जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो मुबालगे के लिए है और एग्जेजरेशन के लिए है कि जो लोग अल्लाह के अहकामात को चैलेंज करते हैं, गोया वो अपने आप को उस कैटेगरी में पाएंगे कि जो लोग अल्लाह ताला की वजूद का और उसके दीन का इनकार करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी सीरियस बात बताई जा रही है कि तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और उसकी हुदूद का ख्याल रखो और उनका एहतराम करो और उनकी मुखालफत मत करो, वरना क्या होगा, अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। और ये दर्दनाक अजाब की बहुत सारी कैफियतें हो सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उन जो दर्दनाक अजाब की सूरतें हैं उन तमाम से हमें बचाए। और यही तो हम दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमें दुनिया में अच्छी बात अता फरमाए, आखिरत में अच्छी बात अता फरमाए और जहन्नम के अजाब से बचाए। तो इसके बाद अब आप जो है ना आयत नंबर 5 की जो मतलब है कि आयत है उसका तर्जुमा, उसके ऊपर हम गौर करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह पिछली आयत नंबर 4 और 5वीं के दरमियान जो है वो ताल्लुक और रब्त है। बेशक वो लोग युहाद्दून अल्लाह व रसूलहू, जो लोग के
चैलेंज करते हैं, रूगर्दानी करते हैं, किनको? अल्लाह को और उसके रसूल को। जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं और उनकी तालीमात को और हुदूद को जो है वो चैलेंज करते हैं, तो उनके लिए क्या फरमाया? कुबितू कमा कुबितल्लदीन मिन क़ब्लिहिम। उनको अल्लाह तबारक व तआला जिल्लत और रुसवाई से दो चार करेगा। जो लोग, अब इसके अंदर देखें, लफ्ज इस मुसलमानों का नहीं लिया गया है, नहीं गैर मुस्लिमों का, ये जनरल है। बेशक वो लोग, अब इसके अंदर मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा नुक्ता है गौर का, कि जो मुसलमान होते हुए ऐसे कवानीन बनाएंगे, और उलमाए कराम ने इसकी तफसीर में लिखा है कि वो बादशाह, वो हुक्मरान और वो वाली जो ऐसे कवानीन बनाते हैं जो सरासर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ होते हैं, और वो काजी और वो लोग कि जो उन गैर इस्लामी कवानीन को इम्प्लीमेंट करते हैं, जानते बूझते हुए कि ये इस्लाम के खिलाफ ये कानून है, उसके ऊपर वो अमल करते हैं, उसके ऊपर वो अमल कराते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ने क्या फरमाया? कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। उनके लिए जिल्लत और रुसवाई है जिस तरह के उससे पहले लोगों को जिल्लत और रुसवाई से दो चार किया गया। अब यहाँ सीगा तो है जमा का, इन्नल्लज़ीना, लेकिन आप इसको अफराद के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि एक अल्लाह का कानून है, हम उसको नहीं मानते। नाउज़ुबिल्लाह, कैसे हम कहते हैं कि अल्लाह का कानून है और हम एतिकादी तौर पर मुसलमान हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कानून बनाते हैं जो इस्लाम के खिलाफ है, जो इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर कुरान ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को, ज़िना को हराम करार दिया, और आप एक मुसलमान हुक्मरान होते हुए, एक मुसलमान होते हुए आप इन अहकामात की परवाह नहीं करते हैं, इनके अंदर आप लोगों को ढील देते हैं, तो आप भी इस कैटेगरी के अंदर आएंगे कि आप अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को आप चैलेंज कर रहे हैं और उनके आप खिलाफ जा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर भी अप्लाई होगा। इसलिए हमारे उलमाए कराम ने अक्सर ने, जिनकी मैंने तफसीरों का आज मुताला किया, वो तकरीबन सभी की यही कह रहे थे कि यहाँ से मुराद वो लोग भी हैं, हुकूमत वाले लोग, जो बराए नाम निहाद मुसलमान हैं, लेकिन उनकी हुकूमत के अंदर ऐसे कवानीन बनते हैं जो इस्लाम के खिलाफ होते हैं। और मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है कि आजकल दुनिया के अंदर और मुसलमान हुकूमतों के अंदर ऐसे कवानीन बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं जो सरासर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। उनको ये आयतें पढ़नी चाहिए और इन आयत की रोशनी में अपने किरदार पर उन्हें नजरसानी करनी चाहिए। वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनातिन वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। बेशक हमने वाज़ेह निशानियां, वाज़ेह आयात और तालीमात हमने नाजिल की है। वलिल काफ़िरीना, और जो लोग इनकार करते हैं। फिर यहाँ पर जो है ना, लफ्ज काफिरीन इस्तेमाल हुआ है। फर्क यह है कि यहाँ पर कहा वलिल काफिरीन अज़ाबुन मुहीन, और पिछली आयत में कहा था वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। जो लोग के इन तालीमात की मुखालफत करते हैं, यहाँ लफ्जी तौर पर तो माना होगा काफिर, लेकिन इसका माना आयत के कंटेक्स्ट में होगा कि जो लोग इन आयत की मुखालफत करते हैं और एतिकादी तौर पर नहीं, अमली तौर पर इनकार करते हैं अपने अमल के। वो कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, कुरान हमारा आईन है और दस्तूर है, लेकिन उनका अमल उसके खिलाफ है। मिसाल के तौर पर सूद को हराम करार दिया गया और वो सूद को प्रमोट करते हैं, सूद की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। शराब को हराम करार दिया गया है। इसी तरह दूसरी चीजें हैं जिनको हराम करार दिया गया है कुरान के अंदर, और वाज़ेह बताया गया, कोई उसके अंदर एम्बिग्यूटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपनी कमजोरी को जाहिर करते हुए वो इनके खिलाफ कवानीन बनाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उन्हें रुसवाई मिलेगी। यानी रुसवाई से मुराद ये नहीं है कि दुनिया में माशी तौर पर वो खुशहाल हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको किसी और तरीके से उनको जिल्लत और रुसवाई से दो चार करे। तो हम अफराद हों, इंडिविजुअल्स हों
یا हुकूमतें हों या तंजीमें हों, ऐसा कोई काम हमारे इदारे के अंदर, हमारी हुकूमत के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे ख़ानदान के अंदर न हो कि जिसके अंदर इस्लाम की तालीमात की मुखालफत होती हो। ये बहुत ही वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर जो है बयान फरमा दिया। अज़ाबुल मुहीन, ऐसा अज़ाब होगा जो ह्यूमिलिएटिंग होगा, जिसके अंदर ज़िल्लत और रुसवाई होगी, अज़ाब भी होगा और उसके अंदर जो है ना ज़िल्लत और रुसवाई भी होगी। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उस दिन को याद करो। फरमाया यौमा इब्तिदा में आ गया है। यौमा इब्तिदा में आ गया है, तो इसके कहने का मकसद ये है, ये नहीं कहा कि उस दिन को याद करो, लेकिन ये कुरान का अरबिक ज़बान का स्टाइल है कि जब जुमले के शुरू में, आयत के शुरू में आएगा, तो यौमा से मुराद होगा कि उस दिन को याद करो। और जब आपसे कहा गया कि उस दिन को याद करो, तो आपके ज़हन के अंदर एक इंतिबाह पैदा हो गया, एक वार्निंग पैदा हो गई, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि वो कौन-सा दिन है जिसको हम याद कर रहे हैं, वो कौन-सा दिन है जिसके बारे में हमें यहाँ कहा जा रहा है कि तुम उसको याद करो। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन, उस दिन को याद करें जब अल्लाह तबारक व तआला तमाम को, उन तमाम के तमाम इंसानों को रिज़रेक्ट करेगा, सबको दोबारा जिंदा करके उठाएगा। बाइन सा, बेसत। तो ये यबासु कुरान पाक में मुतादिद मकामात पर जो है ये मज़कूर है, जिसका मतलब क्या है कि मुर्दों को दोबारा जिंदगी अता करना। तो इसके अंदर भी एक लेसन है कि हाँ, वो अल्लाह जो मुर्दों को दोबारा जिंदगी अता फरमाएगा। तो ये भी ईमान का हिस्सा है कि आ, मरने के बाद दोबारा जो जिंदगी है वो है, मुसलमान उसको मानता है। और यहाँ पर दोबारा वो याद दिलाया जा रहा है कि ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। हजारों साल से ज्यादा इस दुनिया को मतलब आबाद हुई गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बाद कितने दिन और इसके बाकी हैं अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बाहर कैफ वो जो अल्लाह ने अपॉइंटेड टाइम मुकर्रर किया है वो टाइम आएगा, उसके अंदर कोई चीज आगे पीछे नहीं हो सकती। उस दिन को याद करें जब अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को इकट्ठा फरमाए। फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको इन्फॉर्म फरमाएगा, उनको खबर देगा, उनको बताएगा। बिमा अमिलू, देखो बिमा जो है ये जनरल है, जो कुछ भी उन्होंने किया होगा, अमल किया होगा, जो कुछ, इसके अंदर कोई तखसीस नहीं है। बिमा, जो कुछ भी उन्होंने किया होगा अमल, अल्लाह ताला उसके बारे में उनको आगाह फरमाएगा। एक खुदा है और न मालूम इंसान कितने इस दुनिया में आए और आएंगे, तमाम को अल्लाह ताला इकट्ठा फरमाएगा और फिर अल्लाह ताला उनको बताएगा कि उन्होंने दुनिया में क्या अमल किए। इसलिए हदीस पाक में आता है ना कि ये दुनिया जो है दारुल अमल है वैसे, और ये दुनिया जो है आजमाइश का दिन है, और सही जो जिंदगी है वो आखिरत की जिंदगी है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम को इकट्ठा फरमाएगा और फिर उनको, उनके अमाल जो है वो उन पर आगाह फरमाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग लड़खड़ा सकते हैं, जिनका ईमान कमजोर हो या जिनके अंदर ईमान न हो, जो बिल्कुल जो है मादा परस्ती पे यकीन रखते हों और जो सिर्फ साइंसी कवानीन और उसूलों को मानते हों, और जिनके अंदर रूहानी जो मतलब है कि जिंदगी है और रूहानियत के जो अकायद हैं जिनको नहीं मानते हैं, वो यहाँ पर लड़खड़ा जाएंगे। कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि अल्लाह ताला, एक अल्लाह, तमाम इंसानों को दोबारा इकट्ठा फरमाए, तमाम इंसानों को उनकी जिंदगी के अमाल के बारे में खबर दे, लेकिन एक साहिब ईमान का ईमान मुतजलजल नहीं होगा और वो मानेगा कि हाँ, अल्लाह के लिए ये मुमकिन है और ये तमाम बातें होंगी, और उनका यकीन इसके अंदर जो है वो बढ़ जाएगा, बल्कि वो उनका यकीन कमजोर नहीं होगा और उनके यकीन के अंदर इजाफा होगा। और इन आयात को पढ़कर, इन पर गौर करने के बाद वो अपने अमल की इस्लाह करेंगे। अहसाहुल्लाहु व नसूहु, ये कितनी दिक्कत अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाई है कि अल्लाह तबारक व ताला ने, अहसा योसी के माने में होते हैं चीजों को गिनना।
कुरान पाक में एक दूसरी आयत में फरमाया, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो तुम गिन नहीं सकते कि कितनी नेमत है। यहाँ पर अल्लाह क्या फरमाता है, अहसाहुल्लाह, अल्लाह ने उन तमाम आमाल को गिन लिया है कि जो आमाल तुमने दुनिया में किए थे। यानी अल्लाह के हिसाब में, शुमार में है। हमारे शुमार में तो नहीं होगा, हम तो भूल जाएंगे, क्योंकि इंसान जो है वो चीजों को भूल जाता है जानबूझकर, या हवादिसात की वजह से, या ये है कि इंसान अपनी जिंदगी जो डगर पे चल रही है, रूटीन पे, वो पास के बारे में गौर नहीं करता कि मैंने क्या किया है। लेकिन अल्लाह के इल्म के अंदर है, उस तमाम स्टेटिस्टिक्स अल्लाह के पास मौजूद हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम का हिसाब भी रखा हुआ, रिकॉर्ड, और उसके रिकॉर्ड को प्रिजर्वेशन के तरीके भी उसने बताए हैं, वो कैसे करेगा। फिर फरमाया वनसूह, और इंसान उसको भूल चुके हैं। इंसान तो भूल चुका है, कई बातें हमें ऐसी हो याद रहती हैं और कई बातें हम भूल जाते हैं, और उसी में ये भी है कि हमने कुछ काम किए थे, उनको हम भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को याद है हर इंसान। तो ये देखिए, इस्लाम का जो तस्वुर है अल्लाह के बारे में, ये इतना कम्प्रिहेंसिव है, इतना जामे है, इतना खूबसूरत है कि इससे बढ़कर किसी अकीदे के अंदर अल्लाह का ये तस्वुर मौजूद नहीं है। हाँ, इसके अंदर बाज़ औक़ात ऐसी बातें लोगों को मिलती हैं कि लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो पाई-पाई का हिसाब लेगा। जैसे सूरह काफ़ में है कि उस दिन लोग, जब उनका अमालनामा पेश किया जाएगा, तो वो कहेंगे मा लिहाज़िल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरन व कबीरन इल्ला कि इस किताब को क्या हुआ है, इस दफ्तर को क्या हुआ है। हर इंसान के अमाल का दफ्तर पता नहीं कितनी, मतलब है कि उसके अंदर मौजूद होगा। तो वो इस पर गौर फ़िक्र करेंगे कि मेरी छोटी-छोटी बातें जो हैं, वो भी वहाँ लिखी हैं। मैंने पानी किस वक़्त पिया था, और पानी पीते वक़्त मैंने क्या किया, मैं जब चल रहा था रोड पे मैंने क्या किया था, किधर मैंने देखा था, और मेरे कानों ने कौन-सी बातें सुनी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस किताब के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये जो तसव्वुर है इस्लाम के अंदर, ये बहुत जामे है, और ये तौहीद के इस तसव्वुर को अव्वलीन मुसलमानों ने, सहाबा किराम ने, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से और कुरान पाक की तिलावत और आयात से जब उन्होंने समझा, तो उनके अंदर यकीन मुहकम पैदा हो गया, इल्मुल यकीन हो गया। इसलिए माशाअल्लाह वो अकीदे के लिहाज से चट्टान से भी ज़्यादा वो मज़बूत थे, और मुसलमान को दुनिया में कामयाबी के लिए उस अकीदे तौहीद की ज़रूरत है, उस पर गामज़न रहने और उस पर अमल करने की। फिर क्या फरमाया, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर गवाह है। अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर गवाह है। अल्लाह ताला ने अ, बहुत से, मतलब है कि गवाह जो है वो रखे हैं, जो इंसान के अमाल का रिकॉर्ड महफूज़ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला खुद भी शहीद है। अल्लाह ताला इस कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे नाऊज़ बिल्लाह गायब नहीं है कि वो कहीं पर आराम कर रहा है और उसके जो लोग हैं काम कर रहे हैं, नहीं। अल्लाह ताला खुद भी उनको देख रहा है, और उसके जो काम करने वाले हैं वो भी उसकी तालीमात के मुताबिक काम को अंजाम दे रहे हैं। तो शहीद अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से है, और ये अल्लाह तबारक व तआला के वजूद और इस बात पे दलालत करते हैं कि कोई चीज़ अल्लाह ताला के इल्म से और उसके मालूमात से कोई चीज़ जो है ना वो गायब नहीं है। ये बता दिया। अब इसके बाद सिलसिला कलाम जारी रखते हुए थोड़ी-सी इसमें शिद्दत आ गई है। पहले अल्लाह तबारक व तआला के अक़ायद बताए गए, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को चैलेंज करते हैं, उनको ठुकराते हैं, उनके ऊपर वईद बताई गई। अब बताया जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म है, उसकी थोड़ी-सी तफ़सील बता रहे हैं। क्या फरमाया? अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा? ये सवाल है, इसमें इस्तिफ़हाम है और इसके अंदर जवाब भी है, और इसके अंदर फिर दोबारा इस अंदाज से जुमला शुरू हो रहा है कि जिस इंसान को खिताब किया जा रहा है, उसकी पूरी तवज्जो जो है वो इस तरफ मुतवज्जे हो जाए कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि क्या तूने नहीं देखा। जिस तरह आप किसी को कहते हैं कि क्या आपको ये बात मालूम है?
क्या आपने ये बात नहीं देखी थी? क्या आपने ये बात सुनी है? तो जिस को आप मुखातिब कर रहे हैं, जब वो आपकी बात को वो इस तरह कहते हैं, तो आप फौरी तौर पर अटेंटिव हो जाते हैं कि कौन सी बात कह रहे हैं। आप पूरी फिक्र वहां पर ले आते हैं, अपनी सोच को, अपनी मेमोरी को, कि मैं सोचूं तो सही कि कौन सी बात ये कह रहे हैं, और उसके बाद उसकी तशरीह हो रही है। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा, क्या तूने ये बात नोटिस नहीं की कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन के अंदर है। देखिए, माँ जनरल है। अगर यहाँ पर मन होगा तो इससे मुराद जीरू मखलूक है, लेकिन अगर माँ इस्तेमाल कर लिया तो इसके अंदर दोनों आ गए। इसके अंदर जीरू मखलूक भी आ गए हैं, इसके अलावा जो कुछ भी है, जमादात है, समुंदर है, पानी है, दरख्त है, पत्थर है, पत्ते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें उसके अंदर आ गई। क्या आपने ये नहीं देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है? तो सवाल तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल के साथ साथ जवाब भी दिया जा रहा है कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, और आपके लिए ये बात अचंभे की, अजनबी नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जमीन और आसमान में तमाम चीजों को जानता है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम। नजवा कहते हैं सरगोशी को, विस्परिंग को, और इससे मुराद क्या है कि आप 10 आदमी बैठे हैं, तो आप 2 या 3 अफराद उनसे अलग होकर आप खुसर पुसर करते हैं, एक दूसरे के पास कान के करीब मुंह ले जाते हैं और कहते और बातें करते हैं, तो इसको कहते हैं नजवा। तो जो विस्परिंग होती है और जो प्राइवेटली डिस्कशन बातें होती हैं 2 या 3 अफराद के दरमियान के दूसरों को अवॉइड करते हुए, उसको कहते हैं नजवा। तो अल्लाह ने फरमाया मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन, सरगोशी करने वाले अगर 3 होंगे, 3 अफराद सरगोशी करेंगे, खुसर पुसर करेंगे, विस्परिंग करेंगे, इल्ला हुवा राबिउहुम, तो they will find the fourth one among them is going to be Allah subhanahu wa ta'ala। 3 अफराद अगर सरगोशी कर रहे हैं तो बाकी लोग उनकी बात को नहीं सुनते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनके दरमियान मौजूद हो। अब इसके बारे में लोग सवाल करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उनके पास ही मौजूद होगा, उनके पास ही मौजूद, ये एक खुदा कहाँ कहाँ मौजूद हो सकता है? तो उलमाए कराम यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की माइयत और अल्लाह तबारक व तआला की प्रेजेंस से मुराद क्या लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तो जिस्म और वजूद से पाक है, क्योंकि हम इंसान मखलूकात एक जिस्म के मोहताज हैं। हम तो जिस्म के मोहताज हैं, और जिस्म के बगैर तो हम लोग, इवन जिन्नात जो है वो हमें नजर नहीं आते हैं, फरिश्ते नजर नहीं आते हैं, लेकिन उनका एक वजूद है, उनका जिस्म है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए अगर आप जिस्म का तसव्वुर करेंगे तो ये तो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि मखलूक में और खालिक में फर्क क्या होगा? तो उलमाए कराम इसकी तफसीर ये करते हैं कि अल्लाह अपने इल्म की वजह से उनके साथ मौजूद है। 3 आदमी अगर सरगोशियां कर रहे हैं तो चौथा उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला होगा। फिर क्या फरमाया? वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, और 5 अफराद अगर सरगोशी कर रहे हैं तो छठा उनके अंदर कौन होगा? अल्लाह तबारक व तआला होगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला को वो गायब नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला उनकी सरगोशियों को सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला यानी लतीफ है कि इतनी बारीक बारीक चीजें कि जो आपके दूसरे घर के अफराद नहीं सुन सकते हैं। जी, 2 मीटर दूर बैठे हैं वो नहीं सुन सकते हैं। जी, कुछ लोग लिप रीडिंग करते हैं कि जी हमने लिप रीड करके देख लिया है कि आप क्या कह रहे थे, वो भी उनका एक गेस होता है। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला उनके दरमियान है अपने इल्म की वजह से, और अल्लाह तबारक व तआला बसीर है कि अल्लाह ताला देखता है, और अल्लाह ताला समी है कि अल्लाह तबारक व तआला सुनता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ है।
वला अदना मिन ज़ालिका। देखें यहाँ पर दो का जिक्र नहीं किया है, दो आदमी तो सरगोशी कर सकते हैं ना, तो क्या उसके लिए क्या फरमाया, वला अदना मिन ज़ालिका, इस तादाद से कम तादाद न हो, इस तादाद से अगर कम हो, मिसाल 3 से 2 कर दें आप, वला अक्सरा, या इससे ज्यादा हो, मतलब 8 हो जाए, 9 हो जाए, इल्ला हुवा मअहुम, मगर अल्लाह उनके साथ हो। 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6, 7, 8, 9, जितनी भी हो जाए, थोड़ी तादाद में हो या ज्यादा तादाद में, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ है। ये अल्लाह की कुदरत का बयान हो रहा है। इस्लाम में अल्लाह के बारे में जो तसव्वुर है, जो अकीदा है, उसकी वजाहत हो रही है। अब इसके बाद भी अगर कोई इंसान नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की नाफरमानी की जुर्रत करता है, ऐसा अमल करने की कोशिश करता है कि जिससे ये ज़ाहिर हो कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को इसका इल्म नहीं है, पर्दे के अंदर कम रहा है, खलवत के अंदर करता है, अल्लाह तबारक व तआला को उसका इल्म है। ये तमाम बातें बताई जा रही हैं। ये किन को बताई जा रही है? सहाबा कराम को बताई जा रही है, और ये तमाम इंसानों को बताई जा रही है, तमाम मुसलमानों को बताई जा रही है। फिर उसके बाद फरमाया, वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला माहुम ऐनमा कानू, कहीं पर भी हो, वो जहाज के अंदर सफर कर रहे हो, पहाड़ के ऊपर बैठे हो, बेयाबान के अंदर हो, समुंदर की तहों के अंदर हो, कहां पर भी हो, ऐनमा कानू, जहां कहीं भी होंगे, सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको आगाह फरमाएगा जो कुछ उन्होंने किया था। यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनको आगाह फरमाएगा, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला। आपने गौर किया कि इससे पहली वाली आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया था, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर गवाह है। और यहाँ पर क्या फरमाया, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। ये अलीम भी अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है और शहीद भी अल्लाह ताला की सिफत है। और दूसरा एक नुक्ता आप ये मुलाहिजा फरमाए कि इस आयत के शुरू में क्या फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह यअलम, यानी मालूमात और इल्म से इस आयत का आगाज हो रहा है। और इसकी आखिर में क्या फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को जानता है और हर चीज का उसके पास इल्म है। तो यहाँ दोनों, यानी उसके आगाज में और उसके आखिर में जो बताने का मकसद है, उसका मकसद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है, उसका जो नॉलेज है वो कम्प्रिहेंसिव है। और अल्लाह के इल्म, सूरह आप पढ़ते हैं ना आयतुल कुर्सी, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, अल्लाह का जो इल्म है, इंसान उसके इल्म का इहाता नहीं कर सकते, इल्ला बिमा शा, जो वो चाहे तो उनको दे दे इल्म। तो अल्लाह तबारक व तआला का इल्म तो लामहदूद है, और इंसानों का जो इल्म है वो महदूद है। और इंसानों का इल्म वक्त के साथ साथ बढ़ता भी है और घटता भी है। तो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का इल्म अज़ली है, और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म की हम कोई हुदूद और क़ुयूद नहीं ना बता सकते, क्योंकि अल्लाह खुद ही उसके बारे में बेहतर जानता है। तो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इल्म की यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, इससे मुराद ये है कि इंसान अपने जो कारकर्दगी है, अपना रवैया है, उसके ऊपर गौर करें कि कोई बात अल्लाह तबारक व तआला से छुपी हुई नहीं। अब जो कलाम है उसके अंदर मजीद शिद्दत आ रही है, और यहाँ पर जो खिताब हो रहा है वो किन लोगों को खिताब हो रहा है, खास तौर पर मुनाफिकीन, खास तौर पर अहले किताब की वो जमातें जो अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का कोई मौका नहीं जाने देते थे, और आदाब जो महफिल हैं
उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि हम कहीं पर बैठें, गैदरिंग करें, तो हमारा मतलब है कि रवैया कैसे होनी चाहिए, महफिल के आदाब कैसे होने चाहिए। जब आप जाएँ, किसी को सलाम करें, किस तरह करें? आप कहाँ कैसी जगह पे आप बैठेंगे? ऐसी जगह पे आप बैठेंगे कि आप दूसरों को तकलीफ न दें। आपके बैठने की वजह से, आपके आने की वजह से वहाँ पर किसी को तकलीफ ना हो। तो क्या फरमाया? अलम तरा इलल लज़ीना नुहू अनिन नजवा। क्या आपने नहीं देखा उन लोगों के बारे में कि जिनको मना किया गया है कि वो विस्परिंग नहीं करें, वो खुसर-पुसर न करें, एक दूसरे के साथ दूसरों को छोड़कर आपस में राज़दारी की बातें न करें। ये फरमाया, सुम्मा यऊदून लिमा नूहू, फिर जिस बात से उनको रोका गया है उसकी तरफ दोबारा वो लौट कर आते हैं। यानी अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि आप विस्परिंग न करें, लेकिन फिर वो करते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि आपने उन लोगों को नहीं देखा कि जो इस तरह काम करते हैं? वयतनाजौन बिल इस्मि वल उद्वान, और वो क्या करते हैं कि वो खलवत में आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर क्या करते हैं? ऐसी बातें करते हैं कि जिसके अंदर इस्म है, गुनाह है, और उद्वान है, ज्यादती है। वो इस तरह की बातें जो है वो करते हैं। वमासियत रसूल, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं। यानी वो जब एक दूसरे के साथ विस्परिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? एक तो ये है कि वो ऐसी बातें करते हैं जिसके अंदर गुनाह होता है, ऐसी बातें करते हैं जिसके अंदर ज्यादती होती है, ऐसी बातें करते हैं कि जिसके अंदर अल्लाह के रसूल से सबकी नाफरमानी होती है। उनकी जो विस्परिंग होती है उसके अंदर ये होता है। वइज़ा जाऊका, और जब आपकी महफिल में वो आते हैं तो क्या करते हैं? हय्यौका बिमा लम युहय्यिका बिहिल्लाह, वो आपको ऐसे आदाब और तस्लीमात से आपको ग्रीट करते हैं, सलाम करते हैं कि जिससे अल्लाह ताला आपको ग्रीटिंग नहीं करता। यानी वो आपको अस्सलाम वालेकुम इस अंदाज से कहते हैं कि उसके अंदर भी तौहीन होती है और दिल शिकनी होती है। अब ये देखिए कि आप किसी इंसान को तरीके से सलाम न करें। आप किसी इंसान से जब आपकी मुलाकात हो, तो आपकी खंदा पेशानी जो है उसके ऊपर जो है ना तुरशरुई हो, तो आपकी जो फेस रीडिंग है वो इंसान कर लेगा। उसको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से मुझे पेश आ रहे हैं, और वो समझदार इंसान होगा तो वो आपसे मज़ीद बातचीत करने से इज्तिनाब करेगा कि जिस तुर्शरुई से आप उनके साथ पेश आ रहे हैं, वो कहेंगे कि भी इन्होंने मुझे इस तरह वो जो है ना वो किया है, फेस किया है, तो इनसे बात करने का क्या फ़ायदा है? तो बाज़ औक़ात आपके चेहरे पे वो कुछ होता है जो आपके दिल में होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि आप किसी परेशानी में मुब्तला हों, किसी सदमे से दो-चार हों, और आप जिनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके सामने मुस्कुराहट का इज़हार न कर सकें, तो ऐसी बातें बाज़ औक़ात होती हैं। लेकिन उसके साथ-साथ ये है कि ज़ुबान को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जिनसे आप बात कर रहे हैं, आपकी गुफ्तगू से उनको तकलीफ़ पहुँचे। एक तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, दूसरा आप ज़ुबान से ऐसे अल्फ़ाज़ कह रहे हैं कि जिससे आपका जो मुख़ातिब है, मिलने वाला है, उसको तकलीफ़ हो। ये तो कह रहे हैं अल्लाह ताला कुरान में यही कह रहा है कि आपको इस तरह सलाम करते हैं, जिस तरह अल्लाह ने आपके साथ आपको सलाम नहीं किया। अल्लाह ने यही सलाम किया ना कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आपको कोई कहे तो आप जवाब में यही कहेंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लेकिन ये लोग, एक तो ये है कि ये विस्परिंग करते हैं, और फिर जब आपकी महफ़िल में आते हैं तो आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं। अल्फ़ाज़ मतलब है कि अगर आप कहेंगे तो ये होगा। वयक़ूलून फ़ी अनफ़ुसिहिम, और जब आपके साथ बुरे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर अपने दिलों में ये कहते हैं, लौला युअज़्ज़िबुना अल्लाहु बिमा नक़ूलु, हम जो बात कर रहे हैं बदतमीज़ी की, बेअदबी की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमको अज़ाब क्यों नहीं दे रहा है बस? ये देखें, ये तो गुनाह की आप कह दें कि इसके अंदर कौन-सी हद रह गई जो उन्होंने नहीं छुई है? गुस्ताखी की, अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी, अल्लाह की गुस्ताखी।
यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल को इस बात का इल्म नहीं है, अल्लाह ताला को इस बात का इल्म नहीं है कि जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया उनके ऊपर फौरन अजाब नाजिल हो जाए। बस वो क्या अपने आप को कियास कर रहे हैं अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ कि फौरन उनके ऊपर अजाब नाजिल हो जाए। यानी ये तो दावत दे रहे हैं अजाब की, कि हमने गुनाह किया है और हमारे गुनाह की वजह से हमारे ऊपर अजाब क्यों नाजिल नहीं हो, बजाय इसके कि इस्तिग़फ़ार करें, माफी मांगे। ये इंसान की हटदर्मी है कि इंसान इस तरह की मतलब सूरत हाल के अंदर बजाय इसके कि माफी मांगे, अपनी गलती का एहसास करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, वो उल्टा जो है क्या कर रहा है कि वो अल्लाह के अज़ाब को चैलेंज कर रहा है और अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहा है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हस्बुहुम जहन्नम यस्लौना। अगर उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं आ रहा दुनिया के अंदर, तो उन्हें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, उनका अंजाम क्या होगा, जहन्नम उनके लिए काफ़ी होगा। यस्लौनहा, उसको वो लोग पालेंगे, जहन्नम तक ये पहुँचेंगे। वबिअसल फबिअसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है वैसे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर उनको वार्न किया है और ये आयत नंबर 8 है। यहाँ पर हम अभी जो है अपनी बातचीत को ख़त्म करेंगे। इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद वज़ाहत आइंदा के तफ़सीर के हमारे दर्स में होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ हमने आज की 4 आयत के अंदर पढ़ा है और उसकी तशरीह की है, अल्लाह ताला हमें उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए हमारी कुरान की इस महफ़िल में हमारी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।